Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in today's session of quantitative, we are going to cover number system. We are going to do a few more questions of number system and see what kind of questions we are going to get. Now, let's see what does the first question says. It says there is a set of some numbers. The highest number is 2/9 of the total sum. Okay. So basically, I don't know how many numbers are there, but the highest number is 2/9 of the total sum. And second highest number is 2/9 of the remaining sum. Then these two numbers differ by 8. What is the total sum? Okay. So what should be the approach? So what I'm going to do? The sum should be a multiple of 9 because total sum is t, right? And the largest number or highest number is equal to 2/9 of t, right? So it means the total sum should be a multiple of 9. Now, is first option multiple of 9? 1 plus 3 plus 2, that is sum is 6. So divisibility rule of 9 divisibility or rule of 9 is such that sum of the digits should be divisible by 9. So 1 plus 6 plus 2, that is 9. Okay, so this is divisible by 9, this is not. 1 plus 4 plus 2, that is not divisible. 1 plus 5 plus 2, that is not divisible. So basically we got the answer. But still, if you want to solve, what is the approach that I'm going to take? I'm going to say I'm going to assume that total sum is 9x. Out of 9x, the largest number is 2/9 of this. So largest number is 2x. So what is the sum of remaining numbers? That is going to be 7x. Now, the second highest number is 2/9 of the remaining numbers. So second highest number is 2/9 of 7x. So largest number is 2x. Second largest number is 14/9x. And that's equal to what? The difference is 8. So basically what I can do, I'm going to get 4x divided by 9, and that is equal to 8. This comes out to be 2. So x comes out to be what? 18. So what was my total sum? That is 9x. So 9 into 18 comes out to be 162. But you shouldn't do the questions like this. You should just try to eliminate the options. The way the options are given, we can easily get the answer without getting into too much calculation. This is something that I would prefer not to do in the exam. I am just going to look at the options and figure out what should be the answer. Now, let's move on to the next question. What does it say? The sum of the digits of any integer lying between 1000 and 10,000 is subtracted from the number. The result is always what? ठीक है. So एक नंबर है, उसको उस नंबर से खुद को उसकी सम ऑफ डिजिट्स माइनस कर दी, तो जो नंबर होगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? एंड ऑलवेज रिमेंबर, only one of the options can be correct. More than one options can never be correct. So what I am going to do, I'm going to pick a random number between 1000 to 10,000. I'm going to pick, let's say 1010. ठीक है. अब इसमें मुझे क्या करना है? The sum of the digits is subtracted from the number. तो यहाँ पे sum of digits क्या होगा? Sum of digits होगा 1 plus 0 plus 1 plus 0. That is what? That is 2. So 1010 minus 2 comes out to be 1008. ठीक है. ये 5 से डिविजिबल तो नहीं है. ठीक है. Sum of the digits is 9. So ये 9 से डिविजिबल है. ये 6 से भी डिविजिबल है. ये 11 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है. So it's fine. ठीक है. So मुझे पता है कि either this or this is going to be the answer. Now what alternate approach I have? Now how can I eliminate the second option? I'm going to pick another random number. For example 2015. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? यहाँ पे अपना सम ऑफ डिजिट्स होगा, या फिर एक काम करते हैं, सम ये ले लेते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट? 6 plus 1 7, 7 plus 2 9. यहाँ से 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2007. ठीक है. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या है? यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर क्या आ रहा है? वो 9 का मल्टीपल आ रहा है. सो अगर 9 का मल्टीपल आ रहा है लेकिन ये 6 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि आप देखो सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 9,
लेकिन ये नंबर इवन नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। Now, if you don't want to get into this, you want to get into a little bigger approach. So, what is the approach that you can take? That ABCD is a 4-digit number. So, अगर इसका expansion लेंगे तो ये आएगा 1000A plus 100B plus 10C plus D. So this is how you expand the number. और इसमें हम sum of digits को minus कर रहे हैं, मतलब sum of digits ABCD का होगा A plus B plus C plus D, जहां पे ABCD 4 डिजिट का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1010 या 2016। ठीक है, अब यहां से 1000A minus A will give us 999A, 100B minus B is 99B, 10C minus C is 9C, और डी से डी कट गया। तो अब देखिए ये पूरा नंबर 9 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 9 का। बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस इन द एग्जाम, अगर मुझे करना ही होगा सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू पिक कपल ऑफ नंबर्स और मे बी कपल ऑफ मोर नंबर्स एंड आई एम गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड गेट द आंसर। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इट सेज द मैक्सिमम प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें एक नया कंसेप्ट पे ले जाता है, जहां पे अगर सम कांस्टेंट है a प्लस बी इज इक्वल टू 24 और गिवन ये है कि सम अपना गिवन है कि 24 है और प्रोडक्ट मैक्सिमम पूछा है। सो मैक्सिमम प्रोडक्ट इज दिस, नेचुरल नंबर बोला हुआ है, तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट हमेशा तब आएगा जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। सो दिस 12 into 12 आंसर कम्स आउट टू बी 144। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25 बोल दिया, ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछता है कि a इंटू बी इंटू सी का मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, और ए बी सी पे बस इतना बोला है, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, या नेचुरल नंबर बोला ही नहीं है। तो इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, आप तीनों को इक्वल रखिए, तो 25 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 3, सीधे अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि जब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये बोल देता है कि एबीसी नेचुरल नंबर्स है, एबीसी आर नेचुरल, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम तीनों को इंटीजर बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब कंप्लीट नंबर। सो 8 प्लस 8 प्लस 9, सो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट आएगा वो 8 इंटू 8 इंटू 9 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, व्हेन समेशन इज कांस्टेंट यू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट व्हेन वैल्यूज आर इक्वल और क्लोजेस्ट, मतलब जितना पास वैल्यूज होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा मिलेगा अगर समेशन कांस्टेंट हमको दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, the LCM of two positive integers is thrice the smaller number, the sum of GCD। अब यहाँ पे क्या है कि GCD टर्म का यूज किया हुआ है, तो एक बात याद रखिए कि GCD इज नथिंग बट HCF। GCD और HCF एक ही चीज होते हैं, ठीक है। GCD एंड द लार्जर नंबर इज 24, ठीक है, द स्मॉलर नंबर क्या होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि स्मॉलर नंबर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप द फर्स्ट ऑप्शन। स्मॉलर नंबर 6 है, स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर एलसीएम, ये लार्जर नंबर ये एलसीएम एंड ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम 18 है। अब 6 और किस नंबर का एलसीएम 18 हो सकता है, तो 6 और 9 का हो सकता है, या फिर 6 और 18 का हो सकता है, ठीक है। अगर लार्जर नंबर 9 है तो HCF अपना 13 आ जाएगा, राइट, क्योंकि इसका सॉरी 15 आ जाएगा, क्योंकि लार्जर नंबर और HCF का जो सम होना चाहिए वो 24 होना चाहिए। HCF कभी भी नंबर से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये तो गलत है, ठीक है। अगर नंबर 6 है, छोटा नंबर 6 है, LCM 18 है, बड़ा नंबर 18 है, तो अपना HCF क्या हो जाएगा 6, मतलब ये 6 है, ये 18 है, ये 6 है, इन दोनों का सम 24 बन गया, इन दोनों का एलसीएम 18 आ गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो स्मॉलर नंबर कौन सा होना चाहिए, 6, सीधे आंसर आ गया। अब दूसरा केस अगर आप चाहें तो दूसरा केस ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है, मैं दूसरा ऑप्शन उठा लेता हूँ कि छोटा नंबर है 8, तो एलसीएम हो गया 24, ठीक है।
सो अगला नंबर जो होना चाहिए वो 8 से बड़ा होना चाहिए. सो बेसिकली इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी 24 इटसेल्फ. तो HCF 0 हो जाएगा, HCF 0 नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें आपकी अटकेंगी, इसलिए 18 नहीं हो सकता. सिमिलरली 9, अगर 9 27, तो इसका मतलब अगला नंबर 27 ही होना चाहिए, और HCF क्या होना चाहिए, -3, क्योंकि इसका और इसका सब -3 होगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता. सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता. एक ही ऑप्शन बचेगा अपने पास. सो एक बात याद रखिए, अपना काम सॉल्व करना नहीं है, अपना काम सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. As soon as you get the correct option, leave the question, mark the answer and move on to the next one. अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे 45 टॉफीज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं PQRS में. ठीक है, S को मिल रहा है P का आधा. S gets half of P gets. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये P है, ये S है. S को अगर X मिलेगा तो P को कितना मिलेगा, 2X. Q को 4/5 ऑफ P और X दोनों का. ठीक है, तो Q को P प्लस S को 3X मिल रहा है. 3X का कितना मिल रहा है, मिलेगा इसमें 3X का 4/5. सो 4/5 ऑफ 3X. ठीक है, Q को इतना मिल रहा है, और R को 2/3 ऑफ व्हाट अदर्स आर गेटिंग, सबके सम का 2/3 मिल रहा है. ठीक है, अब हमारा काम ये है कि S को कितनी टॉफी मिली. ठीक है, तो पहली चीज ये है कि Q को मिल रहा है 12/5X. तो इसका बेसिक मतलब ये है कि X तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो 5 5 नहीं कटेगा. किसी को 4.5 टॉफीज तो मिल नहीं सकती. इसका मतलब ये है कि X 5 का मल्टीपल, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म. ठीक, अब यहाँ पे P को, अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, मैं 10 उठा लेता हूँ. 10 पे काम करेगा तो आंसर ठीक है, 10 पे काम नहीं करेगा तो आंसर 5 हो जाएगा. तो S को 10 टॉफी मिली, तो P को कितनी मिलेगी, 20. 20 प्लस 10 कितना होगा, 30. 30 का 4/5 कितना होगा, तो 30 का 1/5 होगा 6, 4/5 होगा 24. टोटल नंबर ऑफ टॉफीज हो गए 54, जबकि यहाँ पे तो 45 टॉफीज गिवन है. इसका मतलब 10 तो गलत है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 5. कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 होगा. तो दोनों के पास कितनी टॉफी हो गई, 15. 15 का 4/5 कितना होगा, 12. तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 12 कितना होगा, 27. 27 का 2/3 क्या होगा, तो 18. इसका मतलब R को 18 टॉफीज मिली, और टोटल नंबर ऑफ टॉफीज अपनी हो गई 45. and we can get the answer by using the options, not by making equations, because अगर आप equation बनाएंगे so confusing होगा as well as calculation होगी. so इक्वेशन बनाना हमेशा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि अवॉइड ही करें. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5555. तो जो रिजल्ट आएगा वो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 देना चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 555 को 7 से ही डिवाइड कर लेता हूँ. 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 8 जा 56, सो नहीं होगा. 7 7 जा 49, 6 and 5, 7 9 जा 63, 2 and 5, 7 4 जा 20, सॉरी 7 3 जा 21. ये आया, और अपना बचा रिमाइंडर 4. ये अपना आ गया, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 2. इसका मतलब मुझे नंबर चाहिए 7 into 793 प्लस 2. इसका मतलब मैं 5 5 5 में 2 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपना जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 4 की जगह क्या हो जाएगा, 2. और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि रिमाइंडर अपना 2 आ जाए. तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, 2. आगे आंसर, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहे हैं. एक स्टूडेंट है, उसने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, 16.7 से मल्टीप्लाई करना था उसको, लेकिन उसने 16/7 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, उसका आंसर जो है वो इतना करेक्ट आंसर से गलत है. चलिए तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑप्शन बड़े गंदे हैं, इसलिए ऑप्शन यूज नहीं करते. एक नंबर को मान लेते हैं x, उसको मल्टीप्लाई करना था 16/7 से, तो बेसिकली उसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए. ठीक है, इसकी जगह उसने क्या किया, 16/7 से डिवाइड कर दिया, तो उसको क्या मिला, 7/7x/16.
करेक्ट आंसर ये है, इनकरेक्ट आंसर ये है, दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है। सो 16/7x minus 7/16x and that is equal to 69/64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 into 16 256 minus 7 into 7 49 x upon 16 into 7 and that's given to us as 69/64। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे इसको 4 से काट सकते हैं, ये बचा 16। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा इससे माइनस करेंगे, सो 207 x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इंटू 16 एंड दैट इज इक्वल टू 69 इंटू 7। ओके, इससे काटेंगे तो हमें सीधे सीधे 3 मिल जाएगा। सो x कम्स आउट टू बी 7 अपॉन, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 16 नहीं होगा। सो बेसिकली 7/12। सो अपना आंसर आ जाएगा इसका 7/12, दैट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि आप ऑप्शन भी देखिए कि अब ऑप्शन ही बड़े खराब है, राइट। और यहाँ पे सीधे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, अगर आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरे ऑप्शन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरे पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तीसरा नहीं होगा तो चौथे पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर 4th आएगा। लेकिन 3 बार इस फ्रैक्शन के साथ कैलकुलेट करना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, दैट्स द रीजन आई वेंट विद द इक्वेशन। अदरवाइज अगर ऑप्शन यूज कर सकते होते तो ऑप्शन ही यूज करते। With this, we conclude this session. If anyone has any doubt, just drop a message in the comment box. We'll get back to you. Thank you.